Okay, today we will study about computer memory. Computer memory is one of very important and compulsory component of every computer system. In this chapter, we will study about memory and memory devices that are used to store data and programs for permanently or temporarily basis. That is to be used in digital computer. As we know, we have two types of computer memory, that is main memory and secondary memory. We will discuss them thoroughly. First of all, let me introduce you about towards computer memory. Computer memory, in computing, memories refers to the physical devices that are used to store programs and data. That is, we store sequence of instruction in computer memory on temporary or permanent basis. In digital computing, memory plays a very important and vital role, because if you think about structure of a human needs to store many things in your mind. Just take an example of yourself. Currently, you are listening to me, and you have to store that data for permanent basis so that you can utilize when once you are writing the things in the exams. So you need to store the data. On the similar basis, computer also need to store the data and or for on temporarily or permanent basis. So computer memory is defined as physical devices that are used to store programs and data. We have to store data on temporary or permanent basis. So we have it. Memory also needs to store main part of operating system, its data and its application programs, because application programs are also stored in memory. Operating system contains a lot of data that is to be utilized by the computer for running an application. So that data is usually stored in computer memory. I am showing the block diagram of computer system with memory unit. The main memory is connected toward input devices, is also connected with output devices, and have double arrow with CPU and secondary memory. We will explain this diagram in next slides. We have two types of computer memory. I have told you, main memory and secondary memory. We also called as main memory is also called as primary memory, and secondary memory is also called as mass storage devices. So if we have to define the main memory is defined as the memory that communicates directly with CPU, and memory that provide backup storage, because once a computer program is under process and it's running on CPU, it needs backup storage that is provided by main memory. We also called it RAM. Data is stored in secondary storage and provided to main memory when it is required. So in secondary storage, we store the data that we need after some time. For example, you have hard disk as a secondary storage. We call hard disk as a secondary storage because we store the data in hard disk, because when it provides the data when we need it. So secondary storage also have an importance in computer memory, and primary memory has a lot of importance. Now we will discuss about important characteristics of memory Excuse me, devices. sir. जी बेटा Sir. जी बेटा जी. Now we will discuss about important characteristic of memory devices. कि जब भी हमने मेमोरी डिवाइसेस को बाय करना है, यूज करना है, तो उनकी कौन कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं. सो वी हैव एक्सेस मोड, एक्सेस टाइम, ट्रांसफर रेट, capacity and cost. These are the important characteristic of memory devices. So first of all, we are going to talk about access mode. We have two type of access mode, that are sequential access mode and direct access mode, that we also called as random access mode. So in sequential access mode, memory location is accessed in serial order. That is, in a queue you have, if you have to access the memory location, you have to access it serially.
For example, you have to access the fourth memory location. First, you have to skip the first one, then second one, then third one. Then you will go toward fourth memory location. And in random access mode, you can access the memory location randomly. Or if it means that if you want to access a memory location that is at fourth number, you can directly access fourth memory location. That is why we also call it direct access mode. So first one is sequential access mode and second is random access mode. Further characteristics are access time, data transfer rate, capacity, and cost. If you want to define access time is defined as the time taken to retrieve data from memory. वो टाइम के आपकी मेमोरी को मेमोरी से जब उसने डेटा को रिट्रीव किया है, फेच किया है डेटा को, तो कितना टाइम लगा है उसको एक्सेस टाइम कहते हैं. फॉर इट इज नॉर्मली इन नैनो सेकेंड्स, और ये सेकंड से भी कम टाइम का होता है, इसको आप एक्सेस टाइम कहते हैं. Third one is data transfer rate, DTR. DTR is the time taken to transfer data from one memory device to another. For example, आपने USB से डेटा कॉपी करना है अपनी हार्ड डिस्क के अंदर, आपने USB से डेटा कॉपी करना है हार्ड डिस्क के अंदर, तो उसका आपके पास डेटा ट्रांसफर रेट होगा जो आपका टाइम उसके अंदर यूटिलाइज हो रहा होगा. फोर्थ वन इज कैपेसिटी. कैपेसिटी कहते हैं कि आपकी मेमोरी डिवाइस के अंदर डेटा स्टोर करने की कितनी कैपेसिटी है, कितनी स्पेस है. वी कॉल इट कैपेसिटी. फॉर एग्जांपल, यू पीपल इंस्टॉल द रैम इन योर मदरबोर्ड ऑन योर कंप्यूटर दैट हैज 4 GB ऑफ स्पेस, जिसके अंदर 4 GB डेटा स्टोर करने की गुंजाइश होती है. या हम रोम लगाते हैं जिसको हम हार्ड डिस्क भी कहते हैं. 100 GB, 200 GB, 40 GB, up to 500 GB, 1 TB, etc. And third one is, sorry, last one is the cost. Cost कहते हैं, cost is that amount that you have to pay as per capacity of device. जितनी आपने उसके ऊपर कॉस्ट की है, आपकी कॉस्ट इनकर हुई है, उसको आप कहते हैं कि ये आपकी कॉस्ट है. सो ये जब भी कंप्यूटर मेमोरी लेते हैं उसके अंदर ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. Now we have some memory terminologies. First one is the bit, that is the smallest unit of memory in digital computer. For example, 0 or 1. If you look at the memory, अगर आप मेमोरी को गौर से देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि बिट जो होता है वो मेमोरी का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है. अब उसके अंदर होता क्या है कि मेमोरी की स्टेट्स होती हैं. जो कंप्यूटर मेमोरी होती है उसके अंदर मिलियंस ऑफ मेमोरी सेल्स होते हैं. हर सेल्स के अंदर 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जिसको आप 1 स्टेट कहते हैं. और हर मेमोरी सेल की 2 स्टेट्स होती हैं, ऑन एंड ऑफ. ऑन स्टेट जो होती है वो बाइनरी 1 से रिप्रेजेंट होती है और ऑफ स्टेट आपकी बाइनरी 0 से रिप्रेजेंट होती है. सो बिट जो होती है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इन डिजिटल कंप्यूटर, जिसको आप 0 या 1 भी कहते हैं. सेकेंड वन इज बाइट. Byte is the basic unit of memory and minimum piece of data to be processed by a computer. Byte कहते हैं जो आपका कंप्यूटर एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा को प्रोसेस करता है, उसको बाइट कहते हैं. अगर आपने नोट किया हो, आपका कंप्यूटर सिस्टम की जो मेमोरी है वो मेजर्ड होती है बाइट के अंदर. मैं आपको रिलेशनशिप भी बताऊंगा कि बाइट का बाकी मेमोरी के साथ क्या रिलेशन होता है. Byte is generally used to express the memory size of computer. As I have told you that if you have to install the memory in your computer, what you have to look at, you will ask him about इतने GB होना चाहिए, mean इतने gigabyte memory होनी चाहिए. So byte, in terms of byte, we use to measure the memory. And the third one, computer memory is also measured in byte. I have told you. For example, अच्छा, जो आपका एक बाइट होता है उसको कहते हैं कि वो एक कैरेक्टर को स्टोर कर सकता है. अब वो एक कैरेक्टर ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, स्टेरिक हो सकता है, आपका कोई स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है, कोई भी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एडिशन डिवीजन के ऑपरेटर, ये जितने भी एक ऑपरेटर है इन सब का ये एक बाइट डेटा का ऑक्यूपाई करते हैं. नाउ थर्ड वन इज मेमोरी वर्ड. फर्स्ट इज बिट, सेकंड इज बाइट एंड थर्ड इज मेमोरी वर्ड. Memory word is the smallest size of data that a computer can process. अब अगर आपने word को define करना हो तो word कहते हैं smallest chunk or size of data that a computer can process. ये क्या होता है जी? It is a fixed piece of data
fixed size piece of data handled as a unit by processor, कि इतने amount of data आपका processor उसको वन यूनिट में हैंडल करता है। मैंने आपको कहा था आई विल टोल्ड यू अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन मेमोरी यूनिट। जो 1 बाइट होता है उसके अंदर 8 बिट्स होते हैं, जो 1 किलो बाइट होता है उसके अंदर 2 की पावर 10 बाइट्स होते हैं। सिमिलरली 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 2 की पावर 20 बाइट्स and 1 gigabyte is equal to 2 की power 30 bytes. 1 terabyte is equal to 2 की power 40 bytes. And 1 petabyte is equal to 2 की power 50 byte. And 1 exabyte is equal to 2 की power 60 bytes. So this is the relationship between memory unit and memory units. That is 1 byte is 8 bits, 1 kilobyte 1024 bytes होते हैं 1 किलोबाइट में, 1 MB में 1024 किलोबाइट होते हैं, 1 गीगाबाइट में 1024 MB होते हैं, जबकि 1 टेराबाइट के अंदर 1024 GB होते हैं और 1 पेटाबाइट के अंदर 1024 टेराबाइट्स होते हैं और 1 एक्साबाइट के अंदर 1024 पेटाबाइट्स होते हैं। Now we have to understand about टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी की दो टाइप्स हैं, एक बिल्ट अप वाइज एंड रिटेंशन पावर वाइज। बिल्ट अप वाइज मेमोरी को हम डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज में, चिप मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी। एंड रिटेंशन पावर वाइज हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक होती है वोलेटाइल मेमोरी और एक होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो आपने ये बातें दो जहन में रखनी है। अगर हमने मेमोरी को क्लासिफिकेशन करनी है मेमोरी की, अगर हमने मेमोरी की क्लासिफिकेशन करनी है बिल्ट अप क्वालिटी वाइज यानी मैन्युफैक्चरिंग वाइज, if you have to look at types of computer memory as a manufacturing, if manufacturing is concerned, so we have 3 types: chip memory, magnetic memory and optical memory. And as far as the retention power is concerned, these memories are divided into volatile and non-volatile memory. I will discuss them one by one. So first of all, I am going to tell you about chip memory. Chip memory is a small piece of conducting materials. Normally silicons के होते हैं, स्मॉल सर्किट जिनको आप आईसी सर्किट बोलते हैं वो इसके ऊपर एम्बेडेड हुए होते हैं। टिपिकल चिप जो होती है वो आपकी, उसके अंदर मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं यानी ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। सो लेट मी रिपीट, फर्स्ट वन चिप मेमोरी। चिप मेमोरी के अंदर आपके पास सेमी कंडक्टिंग मटीरियल लगा होता है, आईसी सर्किट एम्बेड हुआ होता है उसके अंदर, और जो टिपिकल चिप होती है उसके अंदर मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ये बहुत फास्ट होती हैं बिकॉज देयर इज, इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते, क्योंकि चिप्स लगी हुई तो इसका मतलब इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं है। सो उसको आप चिप मेमोरी कहते हैं। जिस तरह के आप अगर अपनी यूएसबी को देखें तो वो आपकी चिप मेमोरी की एग्जांपल है। चिप मेमोरी में क्या होता है, आपकी जो कैशे मेमोरी है वो भी आपकी, रैम को अगर आप अपनी देखें तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर भी चिप्स लगी होती हैं। ये सारी आपकी चिप्स मेमोरी की एग्जांपल हैं। मेमोरी कार्ड को अगर आपने कभी गौर से देखा हो तो उसके अंदर कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है जो मूव कर रहे हो और आपके एनर्जी, कंप्यूटर की एनर्जी को यूज कर रहे हो। सो इनके अंदर स्पेशल पर्पस चिप्स लगी होती हैं जिनको आप आईसीज कहते हैं। आजकल आईसीज को यूज ऑटोमोबाइल्स में, होम अप्लायंसेस में, टेलीफोन्स में और अदर डिवाइसेस में भी हो रहा है। सेकेंड वन इज मैग्नेटिक मेमोरी। अब मैंने उसमें आपको बताया था उसके अंदर आपके पास कोई मूविंग पार्ट नहीं है। मैग्नेटिक मेमोरी क्या होता है, ये वाइडली यूज्ड है जो कि डिजिटल डेटा स्टोरेज के लिए यूज होती है, बट इट रेफर्स टू एनी टाइप ऑफ डेटा स्टोरेज यूजिंग अ मैग्नेटाइज्ड मीडियम। अगर आप हार्ड डिस्क को देख लें तो हार्ड डिस्क आपकी मैग्नेटिक मेमोरी है। अगर आप हार्ड डिस्क को गौर से देखें तो वो आपकी मैग्नेटिक मेमोरी की एग्जांपल है। मैग्नेटिक मेमोरी का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, इसके अंदर एक थिन लेयर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल का कोट हुआ होता है और नीचे मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क लगी होती हैं। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर मूवेबल पार्ट्स हैं। जो आपकी बाइनरी इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर किया जाता है टाइनी मैग्नेटाइज्ड और नॉन मैग्नेटाइज्ड स्पॉट्स की फॉर्म में किसी भी डिस्क के ऊपर। अब मैग्नेटाइज्ड स्पॉट जो होता है इट रिप्रेजेंट्स अ बाइनरी 1, जबकि नॉन मैग्नेटाइज्ड स्पॉट जो होता है
जो आपके पास नॉन मैग्नेटाइज स्पॉट होता है वो आपकी बाइनरी 0 को रिप्रेजेंट करता है. नाउ हाउ इट वर्क्स. Working of magnetic memory, a read-write head moves very close to the magnetic surface. The head is able to detect and modify the magnetization of the material. Magnetic storage is widely used because it is relatively cheap in comparison with other storage technologies. अगर आप इसको दूसरी टेक्नोलॉजीज के साथ कंपेयर करेंगे तो ये उनके कॉस्ट वाइज जो होता है वो आपको सस्ता पड़ता है, और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो इसको अट्रैक्टिव इसलिए बनाती है कि इसके अंदर आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं. आजकल चिप मेमोरीज के अंदर भी ये चीज आ गई है, लेकिन एनी हाउ आप देख लें हार्ड डिस्क का यूज अभी तक कम नहीं हुआ है. आपके पास 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क भी आ रही है जो कि मैग्नेटिक मेमोरी की ही एग्जांपल है. इसके अंदर आपके पास एक मेजर लिमिटेशन है. मेजर लिमिटेशन कहते हैं जो इसका आप डिसएडवांटेज कह रहे हैं, वो क्या है कि इस इट एक्सेसिंग द डेटा कैन बी क्वाइट स्लो. अगर आपने मेमोरी कार्ड से डेटा को या यूएसबी फ्लैश से डेटा को एक्सेस करना हो तो उसको एक्सेस टाइम आपका जो होता है वो बहुत कम होता है. उसके कंपैरिजन में अगर आप देख लें मैग्नेटिक स्टोरेज को तो उसमें जो आपका एक्सेस टाइम होता है वो ज्यादा होता है, यानी आपकी डेटा एक्सेसिंग स्पीड स्लो है. थर्ड वन आपके पास है ऑप्टिकल मेमोरी. सो ऑप्टिकल मेमोरी कहते हैं जी ऑप्टिकल स्टोरेज जिसके अंदर आपके पास लेजर बीम यूज होता है. आपने ऑप्टिकल का वर्ड अगर आपके जहन में आए तो आप अगर आपने चश्मों की शॉप देखी उसके लिए ऑप्टिकल का वर्ड यूज किया जाता है, यानी इसके अंदर लेजर का कंसेप्ट आ रहा है. ऑप्टिकल स्टोरेज टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है, लेजर बीम इनकोड्स डिजिटल डेटा onto an optical disc in the form of tiny pits and lands arranged in concentric tracks on the discs. मैं रिपीट कर देता हूँ. ऑप्टिकल स्टोरेज टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है, a laser beam encodes digital data onto an optical disc in form of tiny pits and lands arranged in concentric tracks on the disc. जो आपकी डिस्क होती है कंसेंट्रिक ट्रैक्स उसके ऊपर बने होते हैं, उसके ऊपर लेजर के जरिए डेटा को कोड किया जाता है. सो आई एम गोइंग टू स्टॉप इट बिकॉज रिमेनिंग मीटिंग टाइम इज वेरी लो. सो आई विल जस्ट टेल यू अबाउट. इसके अंदर आपको लो पावर लेजर स्कैनर चाहिए होता है दैट इज यूज्ड टू रीड डेटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम दीज पिट्स. मैंने आपको बताया कि आप पिट्स और लैंड्स की फॉर्म में डेटा राइट करते हैं उसके ऊपर. जब आपने उस डेटा को रीड करना हो तो आपको एक लो पावर लेजर स्कैनर चाहिए जो वहां से डेटा को रिट्रीव करेगा और उसको दोबारा कन्वर्ट करेगा डिजिटल फॉर्म में. ऑप्टिकल स्टोरेज क्या करते हैं, वो आपको ग्रेटर मेमोरी कैपेसिटी देता है, यानी ये हार्ड डिस्क से भी एफिशिएंट है. मैंने आपको पहले बताया सबसे पहले से चिप मेमोरी. चिप मेमोरी नॉर्मली स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा के लिए यूज होती है. आजकल टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है लेकिन जो पहले वाली टेक्नोलॉजी है मैं उसकी बात कर रहा हूँ. सो चिप मेमोरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा, फिर उसके बाद मैग्नेटिक मेमोरी जिसमें आपकी हार्ड डिस्क आ जाती है वो आपकी उससे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करती है, जबकि ऑप्टिकल मेमोरी उससे भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करती है. अगर आपको मैं इंसाइक्लोपीडिया की एग्जांपल दूं तो उसके अंदर वो अगर आपके पास ऑप्टिकल डिस्क हो तो आप 4.72 इंच की ऑप्टिकल डिस्क पे एक इंसाइक्लोपीडिया का पूरा सेट स्टोर कर सकते हैं. इसका मतलब ये है कि इसकी कैपेसिटी मैग्नेटिक स्टोरेज से बहुत हाई है. सो ये आपकी बिल्ट अप वाइज मेमोरी की क्लासिफिकेशन थी. जो आपकी रिटेंशन पावर वाइज है वो आपकी दो है, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल. वोलेटाइल का मतलब होता है उड़ जाना, नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है नहीं उड़ने वाली. सो जब आपका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जब तक सप्लाई होता रहेगा आपकी मेमोरी रहेगी, उसको कहते हैं वोलेटाइल. जब इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आप स्टॉप कर देंगे तो आपका डेटा वोलेटाइल हो जाएगा यानी उड़ जाएगा. सो जो वोलेटाइल मेमोरी है कंप्यूटर के अंदर इट रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी टू मेंटेन द इंफॉर्मेशन. वोलेटाइल मेमोरी रिटेन्स द इंफॉर्मेशन एज लॉन्ग एज पावर सप्लाई इज ऑन. जब तक आपकी पावर सप्लाई ऑन रहेगी वो डेटा को स्टोर किया जाएगी. जैसे ही आप पावर सप्लाई आपकी इंटरप्ट होगी तो आपकी स्टोर्ड मेमोरी लॉस्ट हो जाएगी. जैसा कि मैंने आपको बताया आप टेम्परेरी मेमोरी उसको कह सकते हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए. दूसरी आपके पास है नॉन वोलेटाइल. नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है जिसमें आपने परमानेंटली मेमोरी को स्टोर करना हो.
सॉरी मैंने आपको वोलेटाइल की एग्जांपल नहीं दी। जो आपकी रैम या कैशे मेमोरी या रजिस्टर्स होते हैं, ये वोलेटाइल मेमोरी की एग्जांपल्स हैं, क्योंकि जैसे ही आप मोबाइल को या कंप्यूटर को ऑफ करते हैं, आपका डाटा उसमें से गायब हो जाता है। जबकि जब आप नॉन वोलेटाइल मेमोरी की बात करते हैं, तो नॉन वोलेटाइल के अंदर क्या होता है, नॉन वोलेटाइल में आपकी रोम आ जाती है, यानी हार्ड डिस्क, आपकी यूएसबी, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस या ऑप्टिकल डिस्क या ब्लू रे डिस्क, ये जितनी भी आपकी नॉन वोलेटाइल है, इनके अंदर चाहे आप उसको पावर दे रहे हो या ना दे रहे हो, आपका डाटा परमानेंटली स्टोर होता रहेगा, बिकॉज इट हैज टू स्टोर द डाटा ऑन परमानेंट बेसिस। इट कैन रिटेन द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इवन व्हेन नॉट पावर। नॉन वोलेटाइल मेमोरी आपकी एज अ सेकेंडरी स्टोरेज यूज होती है। I am going to stop it over here. Thank you so much. Any question?